Welcome student to video lecture series for class 12 physics electrostatics chapter, and we have done till now about Gauss's law, and we have also done numericals on that. Now today we will start the application of Gauss's law, and in the application of Gauss's law the three applications which is there in the syllabus of CBSE class 12, and the three application among the three application, the first one is the electric field due to infinitely long charged wire. First of all, let's consider what is this infinitely long charged wire. You can see I have taken it as a thick. It seems it appeared as if I have taken a thick wire, but it is not a thick wire. I have just drawn it to show that it is actually a wire, because the wire is geometrically have the shape of a cylinder only, and in three dimension you can say it is a cylinder, very thin cylinder, and the charge on the wire is given to be positive charge, and we have to find the electric field due to this infinitely long straight wire. Why we have taken infinitely long? For that, let us now consider, first of all, if I want to know what is the electric field at this point. So at this point, from the Gauss's law and properties of electric field that due to positive charge, the electric field at this point P will be radially like this. But if I talk about this charge at this position, due to this charge, electric field will be like this. And similarly, corresponding to this charge, there will be another charge above on the upper half of the wire, due to which electric field will be, suppose this is that wire, like this. And since this is equal, so we will get the resultant along this side only. So this is, because this is a cylindrical shape, this is having cylindrical shape, वायर के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो हर एक डायरेक्शन में हम देखें तो हर एक डायरेक्शन में सिमेट्रिकली आपको रेडियली इस तरीके से, किसी पॉइंट की बात करें हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से रेडियल होगी, बाहर की तरफ होगी, चाहे हम इसकी बात करें तो, लेकिन किसी पॉइंट की बात करेंगे हम तो बाकी सब चार्जेस की वजह से, जो कि रेडियल पोजीशन पे नहीं है, ऊपर या नीचे है, इसकी वजह से रिजल्टेंट फील्ड ज़ीरो होगी. वी विल ओनली गेट द रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू दिस डिस्क. आपको हर एक सरफेस पे, यानी हर एक पॉइंट पे आपको इस तरीके के डिस्क शेप में आपको प्लेन मिल जाएगा, जिसमें रेडियली फील्ड बाहर की तरफ होगी हर पॉजिटिव चार्ज की वजह से. चाहे आप इधर करें, चाहे आप यहाँ लें, हर एक position पे you will get electric field radially outward. So if I draw the locus of all these, I will get like this. Suppose this is the point, this is the locus. This locus is called as Gaussian surface, because if we apply Gauss's law, to apply the Gauss's law, we have to take a symmetrical Gaussian surface, and which will enclose the charge. And if I consider this wire, then this surface is enclosing this charge. तो हम इसको गॉसियन सरफेस लेंगे, तो इस केस में गॉसियन सरफेस जो होगा वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा. और अगर हम बात करें कि इन्फिनिटली लॉन्ग क्यों लिया है, अगर हम देखें एंड पोजीशन पे जाएं तो यहाँ एंड पोजीशन पे इधर जो चार्ज है इसके वजह से तो फील्ड होगी, कुछ फील्ड आपकी इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी होगा, तो आपको इस तरीके से फील्ड बिल्कुल सिमेट्रिकल रेडियल नहीं होगी, कुछ फ्रिंजिंग इफेक्ट होगा, इसे बोलते हैं हम फ्रिंजिंग इफेक्ट. तो इसका कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जो कि इसीलिए अभी क्लास 12th में हमें केवल जो है इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेते हैं, ताकि इसके जो एंड इफेक्ट है, फ्रिंजिंग इफेक्ट कहें या और इसको कह सकते हैं एंड इफेक्ट, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं. ऑल्दो वी विल टेक द लेंथ ऑफ द वायर, बट ये वायर को हम मान रहे हैं कि हमने इन्फिनिटली लॉन्ग लिया है. तो ये समझने के लिए है, पर फॉर डेरिवेशन पार्ट, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, आई विल ड्रॉ अनदर डायग्राम. नाउ दिस इज द infinitely long straight wire or conductor, or this is charged also. The charge is there on this conductor, and suppose the length of this wire is L.
इन्फिनिटली लॉन्ग, अगेन रिपीटिंग, इन्फिनिटली लॉन्ग हमने इसीलिए कंसिडर किया है केवल उसके एंड इफेक्ट को निगलेक्ट करने के लिए। बट इस वायर की लेंथ अगर L है और किसी पॉइंट P पे जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट के अराउंड हम एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, इसे हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। एंड डू कीप इन माइंड बिकॉज दिस इज़ अ गॉसियन सरफेस, दिस इज़ एन इमेजिनरी सरफेस जिसके अंदर हम चार्ज इंक्लोज करने की बात कर रहे हैं। इसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे बिकॉज ये कोई कंडक्टर यहाँ पे नहीं है, बस ये एक सरफेस है जो इमेजिनरी सरफेस है जिसके अंदर चार्ज इंक्लोज कर रहे हैं। अब हमें देखना है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ज्योमेट्रिकली देयर आर 3 सरफेसेस, फ्लैट टॉप सरफेस। अगर हम यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लें इस सरफेस के लिए तो इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा इट विल बी लाइक दिस। सिमिलरली बॉटम के सरफेस के लिए अगर हम लिया जाए तो यहाँ पर भी अगर मैं एरिया वेक्टर लूँ परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है एरिया के हमेशा, वेक्टर फाइन में आप लेंगे। एंड अनदर वन, दिस इज अनदर थर्ड वन, ये भी एक एरिया वेक्टर है जो कि नॉर्मल है, आउटवर्ड है, अगेन दिस वन। नाउ यहाँ पे एरिया वेक्टर्स जो है अलग अलग हम एरिया ले रहे हैं तो आई कैन लेबल इट। तो ये वाला एरिया वेक्टर हम लेते हैं DS1, ऊपर वाले को DS2 ले लेते हैं, नीचे वाले को DS3 ले रहे हैं। अब वन बाय वन एज वी हैव डन इन द केस ऑफ न्यूमेरिकल ऑल्सो, पहले जो हमने किया था गॉसेस लॉ के लिए, सिमिलरली यहाँ भी हमें यही करना है। हमें देखना है कि जो आपका एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच का एंगल कितना है टू अप्लाई द गॉसेस लॉ। Because if you remember what is Gauss's law, according to Gauss's law total flux through a surface is equal to charge enclosed upon epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of the free space. We can also take the medium permittivity also here and Q the charge enclosed inside the Gaussian surface. Now for the first case, for this surface, as we have seen earlier, the electric field is always radial perpendicular to each point of the length of the wire. तो हमें यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इस तरीके से रेडियली होगी, बाहर की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से, ऐसे है, और DS2 ऐसे है, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री। नीचे की बात करें अगर हम, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, तो ये आपका दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन ये भी एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है, ये रेडियल है आपका, परपेंडिकुलर है, सर्फ इस प्लेन के अलॉन्ग है। द थर्ड वन देखते हैं, यहाँ पर रेडियली है, आउटवर्ड है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे हम इधर की बात करें चाहे हम इधर की बात करें, क्या है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। यानी जो इस सरफेस, जो ये कर्व सरफेस है, इस कर्व जो कि सिलेंड्रिकल शेप में जो कर्व सरफेस है उसके लिए जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर है। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो लाइक दिस एंड एरिया वेक्टर इज ऑल्सो लाइक दिस। लेट अस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू राइट द इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दीज 3 surfaces. So for the first surface, if I take first I will write the formula. What is the formula for electric flux? If we take in terms of integration sign, to flux to any surface is the integration through the enclosed surface, and this is the line integration of the line integration through the closed surface. ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ इसके लिए अगर हम अप्लाई करते हैं, इनको ब्रेक करते हैं डिफरेंट सरफेस के, दिस इनक्लोज दैट अराउंड दैट क्लोज सरफेस की हम बात करें जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है आपका, इसको हम ब्रेक करते हैं टोटल सरफेस को। यहाँ पे सरफेसेस जो है, एक तो आपका सरफेस फर्स्ट S1 E डॉट DS1, you can see, suppose this is the first surface, this one, the first surface which is the curved surface, and the flat top and bottom, this is the flat surfaces है। ये S2 है, ये S2 सरफेस है, ये S3 सरफेस है, ठीक है। तो हम इसके लिए लिखते हैं, फर्स्ट सरफेस के लिए लिख लिया आपने। सिमिलरली और सेकेंड सरफेस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली, विच इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है,
डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और एरिया वेक्टर का, और अराउंड टोटल एरिया के जो पास कर रहा है। तो यहाँ पे S2 सरफेस सेकंड के लिए हो गया, एंड द थर्ड वन यहाँ पे कौन सा है, S3 है, इसके लिए भी आपका हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स नथिंग बस E डॉट ds3। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम सेकंड सरफेस की बात करें, पहले सेकंड, फर्स्ट को भी हम यहाँ पे छोड़ते हैं, सेकंड की बात करें, दिस इज़ व्हाट, दिस इज नथिंग बट EDS2 cos 90। ध्यान से देखिए आप, ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं। देखिए DS2 इस तरीके से है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, रेडियली चार्ज से अवे है, चारों डायरेक्शन में है, डिस्क की तरह ये आपकी पूरी फील्ड की लाइंस फैली हुई हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से डिस्क की तरह हैं चारों तरफ। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर सरफेस की बात करें जो फ्लैट सरफेस है ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ इस तरीके से है, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो मैंने आपका यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली थर्ड वन जो कि नीचे का फ्लैट सरफेस है, उसके लिए भी क्या हो गया, EDS3 cos 90। Now the first one, which is the curved surface. You can see for the curved surface or the first one, the theta angle is 0. The angle between the area vector and electric field is 0. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये S1 EDS1 cos of 0. So what we can write then? We can simply write this is equal to your only EDS1 for the total surface S1. बाकी के लिए 0 हो जाएगा इस तरीके से। अब आपका EDS1 ये क्या है, दिस इज सेम एज, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, तो हम खाली बात करते हैं, ये आपका हो जाएगा DS1 का अक्रॉस सरफेस S1, यानी टोटल S1 सरफेस का टोटल एरिया ये डिनोट कर रहा है। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए टोटल एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। What is the area of the curved surface? You can, what is the formula for area of a curved surface? अगर आपको ध्यान हो, सिलेंडर के केस में कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है, जो बेस का एरिया होता है और उससे लेंथ, सॉरी, आपका कर्व सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, आपका सरकमफ्रेंस जो होगा आपके बेस या फिर टॉप का, यानी फिर फ्लैट सरफेस का सरकमफ्रेंस हमने ले लिया, जो कि कितना हो जाएगा, चाहे हम यहाँ की बात करें चाहे यहाँ की बात करें, तो किसी एक पोर्शन की हम बात करते हैं पॉइंट P के अक्रॉस। अगर हम डिस्क ले लें, सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा इसका 2πr, बिकॉज ये डिस्टेंस कितना है, जो पॉइंट P हमने लिया है ये डिस्टेंस R पे ले रहे हैं हम जब भी कोई जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो वी सिंपली टेक सिंपल कॉमन डिस्टेंस एज R। तो पॉइंट P जो कि R डिस्टेंस पे है, सरकमफ्रेंस जो इस कर्व सरफेस का होगा पॉइंट P के अक्रॉस, ये होगा 2πr, और आपका इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हमने लिया हुआ है यहाँ पे L। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कर्व सरफेस वो क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 2πr इंटू L। दिस इज द फ्लक्स। नाउ this is the first portion, this is the first part, you can write it as equation number 1. Now we have to apply the Gauss's law. Before applying the Gauss's law, first we have to find what is the charge enclosed inside the Gaussian surface. So the charge enclosed inside the Gaussian surface, what is the charge enclosed? The charge enclosed inside the Gaussian surface, ये आपका कितना होता है, ये लिखना है। उसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हमें ये चीज़ अज्यूम कर लेनी थी कि जो आपका जो ये लाइन चार्ज जो आपने जो लिया है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लाइन के अक्रॉस, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज़ लैम्डा। हमने डिस्कस किया हुआ है पहले के टॉपिक्स में, अगर आपने नहीं देख रखा है तो आप सारे वीडियो डे वाइज उसको देखें और फिर इस टॉपिक को करें। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका लैम्डा है, तो चार्ज इनक्लोज्ड आपको निकालना है। तो चार्ज इनक्लोज मान लीजिए Q, ये कितना हो सकता है, लैम्डा कैसे डिफाइन करते हैं, लैम्डा इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो आपका चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। तो चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू L. This is the second one. Now applying the Gauss's theorem, so from
Gauss's theorem or Gauss's law, what we get, what is the law? The law is that total electric flux is charge enclosed upon epsilon naught for free space. So we will using equation number 1 and 2. So using equation number 1 and equation number 2, we will get what we will get. You can see that the phi is E into 2 pi r L from the first equation. You can see the first equation is this, and the second equation is your Q equal to lambda L. So phi is equal to E into pi r L. This is equal to राइट हैंड साइड में आपका क्या है, तो चार्ज इनक्लोज है. चार्ज इनक्लोज कितना है आपका, ये लैम्डा एल है अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और वी कैन सिंपली राइट E इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट. ये आपका L कैंसल्स आउट हेयर. सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. दिस इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट. This is the formula for electric field. This is the final formula. If I want, because as you know electric field is a vector quantity, we have to show the direction also, and you can see from the diagram what is the direction of the electric field. Direction is radially outward perpendicular to the length of the wire. तो अगर हम n cap यूनिट वेक्टर ले लें, यूनिट n cap is the unit vector which is radially away from the line charge. So we can simply write electric field in vector form also, that is lambda upon 2 pi r epsilon naught n cap, where n cap is unit normal radial vector. ठीक है, तो आपका डेरिवेशन जो है लीनियर चार्ज के लिए हो गया है. द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely charged plane sheet of charge.